Good morning everyone. Students, in the previous class we have started chapter number 8, dissolution of a partnership firm, and we have done a theoretical part of this chapter, right? I have just explained mode of dissolution of a firm, settlement of accounts, and payment of firm's debts and private debts, how to settle the debts of the firm. This we have discussed. We have discussed the differences also, firm's debts and private debts. Today we will proceed and we will be learning certain journal entries. We will start from the illustration number 4. But students, it will be easy to learn realization account first, as it is given after I think 7-8 illustrations. But it's good to complete the realization account first, not revaluation, sorry. See, let me tell you the difference between revaluation account and realization account. These two accounts are there, and the previous video also I have explained about it. Revaluation we prepare at the time of admission, retirement, death, and when the profit sharing ratios are changing. Then we prepare revaluation of assets. There we revalue the assets and reassessment of the liabilities we do. Realization account is Vasuli Khata, in Hindi we call it, and this is prepared at the time of dissolution of the firm, where we sale of all the assets and we make the payment to the liabilities, right? That all things are done in the realization account, right? So how to prepare this account we have to learn first. This is very easy to prepare. Like revaluation account, its format is there. This is debit side, this is credit side. Now what we have to do, students, from the balance sheet we just take all the assets to this side and all the liabilities this side. Okay, this is your particulars amount. All right, so I can show you the realization account here only. Students, here we take all the assets. I'm not writing the name of assets separately, means the assets which we have in the balance sheet's asset side. All right, and here we take liabilities which we have in the balance sheet, right? But we have to take care certain things while taking the assets and liabilities also. In liability side, we don't take the partner's capital. Okay, we don't take the partner's capital, we don't take the partner's loan even. But if it is outsider's loan, yani ki we can say A, B, C are the partner and Mrs. A's loan is there, Mrs. A will be considered as an outsider. वो आप previous video में detail देखेंगे, ठीक है? तो Mrs. A is considered as an outsider या बैंक लोन है, तो वो आप यहाँ लेते हैं. You include in other liabilities. All right, students, the point is clear. We don't take capital of the partners, we don't take partners loan account, we don't take any kind of reserves. Okay, reserves आपको पता है, reserve and surplus में जो आता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो एंड सो. वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्वेश्चन है, उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन सा कब लेना है या कब नहीं लेना. बट जनरल रिजर्व काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट टेकन हियर, दैट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? सो इफ वी हैव एनी अदर liability that we take. Assets में अपने को क्या नहीं लेना है, we don't have to take cash in hand and cash at bank, because there is no need to realize these things. Okay, these are already realized. The most liquid form is the of the assets, cash and bank. ठीक है, बाकी की जो assets हैं वो आप यहाँ लेते हैं. ठीक है, now so many other points, small points you'll be learning in between while doing the question. So this is the basic things I'm telling you. Then learn this cross wala format. Okay, cross means here we have taken liabilities and here we have taken assets. So liabilities will be paid off to this side and assets will be realized to this side. For example, suppose all the assets are given, the value is 50,000 and liabilities is of 20,000 suppose. Okay, so assets will be realized. I think you know, students, when we sell the assets, so we get the money, हमें पैसा मिलता है. ठीक है,
एंड लाइबिलिटीज़ को आप पेमेंट करते हैं तो पैसा जाता है। नॉर्मल जर्नल एंट्री भी आप देख सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है तो एंट्री क्या हो जाती है आपकी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री है। जब आप असेट्स को बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हैं। नाउ यू कैन हैव अ डाउट कि ये लाइबिलिटीज़ टू बैंक है, राइट, तो लाइबिलिटीज़ को आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हो जाती है आपकी सिंपल टू बैंक, ब्रैकेट में जो भी लाइबिलिटी दे रखी होगी उसका नाम लिख देंगे, मैंने सिर्फ लाइबिलिटी लिखी है। सपोज द होल अमाउंट 20,000 यू आर पेइंग, राइट, 20,000 आपने पे कर दिया, ओके। नाउ हियर यू कैन से दिस इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे अगर आप ये जर्नल एंट्री चेक करेंगे तो ये आती है आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्या आया, लाइबिलिटी की जगह क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हाई डज दिस हैपन, बिकॉज मैंने क्या किया है, ये सारी लाइबिलिटीज़ को किस अकाउंट में डाल दिया, रियलाइजेशन में। आप देख रहे हैं कि सारी लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहाँ पे डेबिट में आप असेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेट्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। सो आई डोंट हैव टू राइट दिस assets, all right. So here you can see the assets are in the debit side. When I realize something, so I mention, ये क्रॉस वाला है, by बैंक। सपोज 50,000 की assets थी and you have realized, sorry 50,000 की थी and you have realized 60,000, ठीक है, कम या ज़्यादा में बिकती है ना, तो सेपरेटली असेट्स विल बी गिवन कि किसी पे डेप्रिसिएशन लगता है, कम में रियलाइज होता है पैसा, किसी पे आपको ज़्यादा मिलता है, तो आई हैव टेकन ओनली वन फिगर इन टोटल, ऑलराइट। So this way we mention when you prepare the realization, that's very easy. Take the assets, exceptional cases को छोड़ के, take the liabilities other than the exceptionals, okay, and then cross, यानी liabilities को payment करना है simple to bank करना है, assets से realize करना है तो by bank करना है, bank ही चलेगा दोनों तरफ, nothing special, okay. But I hope the logic is this logic is clear to everyone, ठीक है। So what you have to remember, ये हमारी नॉर्मल एंट्री है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमारी नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। बट यहाँ पे इस चैप्टर में जब आप रियलाइजेशन के थ्रू ये कर रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं, आई मीन असेट्स से पैसा रियलाइज कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट टू असेट्स नहीं आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो आई डिडंट टेक द फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में सीधा जर्नल एंट्री पूछी है, तो यू विल गेट कंफ्यूज वाइल डूइंग द जर्नल एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। सो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, सो दिस वे दिस सिस्टम वर्क्स। सो आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन कि आपने ये कैसे ट्रांसफ़र किया, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं, तो आपने एंट्री की क्या की थी, आपने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स। आपने कितने की असेट्स डाल दी, 50,000 की असेट्स डाल दी। हियर द पॉइंट विल बी मोर क्लियर, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स कर दिया, ओके, असेट्स आ गई इसमें। अब जब हम बेचते हैं, ठीक है, असेट्स को बेचते हैं, तो क्या एंट्री सिखाई थी, बैंक, बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि असेट्स को मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन में डाल चुकी हूँ, तो ये रियलाइजेशन है मेरा डेबिट। तो अब जब बेच रहे हैं तो क्या कर देंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 60,000 में हमने बेच दिया, राइट स्टूडेंट्स। सो हेयर यू कैन सी रियलाइजेशन डेबिट एंड रियलाइजेशन क्रेडिट कैंसिल हो जाता है, तो आपकी नॉर्मल एंट्री कितनी रह जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, राइट, दैट इज़ व्हाट द बेसिक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। बट हमें क्या करना है, अब जर्नल एंट्री पूछेंगे, अगर पूछते हैं इस चैप्टर में, तो हमें करना है बैंक अकाउंट डेबिट to realization, okay, and in the same way we make the payment of the liability, realization account debit to bank liabilities. अगर कोई expenses होता है, we will take one illustration, कोई भी आपका expenses होता है तो वो realization के debit में दिखाया जाता है, realization account debit to bank account, right students, these are the basic things of the realization account, okay. Now what happens, one more thing, sometimes these assets are not realized in the market, even these are taken by the partners, okay.
मान लीजिए फर्नीचर है, ये असेट्स को मैं और इलेबोरेट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके डेटर्स थे 10,000, फर्नीचर था 20,000, ओके, एंड स्टॉक था अगेन 20,000, राइट। अब आपको स्टेटमेंट में कहा जाता है कि फर्नीचर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर ए एट द वैल्यू ऑफ 15,000। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब व्हेन योर फर्म इज वाइंडिंग अप, सो सर्टेन असेट्स आर देयर, so you are trying to sell it out in the market, right, to anyone. Sometime these partners, they need that, they may use these things at their home or the place wherever they want, so they can say ki we have to purchase the furniture. If I purchase from the market, that will be very costly, so let me take it from my own firm. हमारी firm भी बेच ही रही है, तो let me take from my firm, right? So that way the partners can take the assets and partners can take the responsibility to pay the liabilities also, and all these things will be adjusted in their partners capital account. Have you understood? अभी असेट्स ले लेते हैं, कोई भी असेट्स लेता है तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, लेकिन ये यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अभी असेट्स को बेचा था तो हमने पैसा रियलाइज किया था बैंक, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेता है तो बैंक नहीं होगा, ठीक है। उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर ऐसे ही कोई लाइबिलिटीज़ को आप पेमेंट करते हैं तो टू बैंक करके पे करते हैं। लेकिन मिस्टर बी कहते हैं कि ठीक है, मैं ये लाइबिलिटी को पे कर दूंगा, जैसे मिसेस बीज लोन है, उसने कहा मैं पे कर दूंगा, ठीक है, या कोई और क्रेडिटर हैं तो उन्होंने कहा मैं इस क्रेडिटर को पे कर दूंगा, घर के पास रहता है, राइट। सो हम बैंक नहीं लिखेंगे, बीज कैपिटल लिखेंगे, ओके। सो दिस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट। जो भी लेना देना होता है, अभी कैपिटल का पैसा देना होता है ना पार्टनर्स को, तो वहाँ से लेन देन एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस। फर्नीचर 20,000 में है, स्टेटमेंट में कहता है मिस्टर ए ने फर्नीचर ले लिया 15,000 में, तो बाय बैंक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बाय एज कैपिटल। ब्रैकेट में आप ज़रूर मेंशन करेंगे फर्नीचर, ठीक है, कितने में लिया है, 15,000 में। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आपको कम और ज़्यादा वैल्यू का ध्यान नहीं रखना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे फर्नीचर 20,000 का है और ये लिया कितने में है, 15,000 में, तो लॉस हो गया ना 5,000 का। तो लॉस हम कहाँ दिखाते थे, रिवैल्यूएशन में, डेबिट में दिखाते थे, तो यहाँ का नेट इफेक्ट भी क्या है, 5,000 एक्स्ट्रा इन द डेबिट साइड, ठीक है। ऐसे ये ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें, सो हेयर इट वाज, इस लाइबिलिटी में मिसेस बीज लोन इज देयर 5,000, ठीक है, मिसेस बी का लोन दे रखा है 5,000, विच हैज़ बीन टेकन बाय मिस्टर बी। बी ने कहा कि आई विल पे माई वाइफ्स लोन, तो वो ऐसा नहीं है कि वाइफ का लोन है तो अपनी पॉकेट से करेगा, अपनी पॉकेट से नहीं करेगा, लेकिन उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो द एंट्री विल बी टू बैंक नहीं होगा, क्या होगा, टू बीज कैपिटल, और ब्रैकेट में आ जाएगा मिसेस बीज लोन 5,000, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वे वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सो मेनी अदर पॉइंट्स आर देयर। Sometime you will find it's given in the question कि unrecorded assets are there. See, जो भी assets थी बैलेंस शीट में वो हमने यहाँ रिकॉर्ड की, ठीक है, जो भी liabilities थी वो यहाँ रिकॉर्ड की। फिर उसने कहा, कई बार होता है ना कि you skip something, कोई आइटम रिकॉर्ड होने से भूल जाता है। उन्होंने कहा कि one old computer is lying and we didn't record in the balance sheet. बैलेंस शीट में आती है ना assets आपकी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, सभी चीज़ें, तो यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द ओल्ड कंप्यूटर एंड इट्स वैल्यू वाज 5,000, राइट। सो यू विल गेट इन द क्वेश्चन अनरिकॉर्डेड असेट्स ओल्ड कंप्यूटर 5,000, ठीक है, ऐसे होगा। एंड रियलाइज्ड वो कोई भी अमाउंट दे सकता है, 5,000 भी दे सकता है, 4,000 भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको रियलाइज्ड अमाउंट देखना है, राइट। द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर वाज 5,000 which was unrecorded in the books, now realized 4,000, okay. No problem at all, आप अपने सिस्टम से चलेंगे, जब रिकॉर्ड नहीं है तो हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, वन स्टेप इज क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब जब रियलाइज होती है असेट्स तो कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं ना क्रॉस में, सिंपल, वी विल बी शोइंग बाय, रियलाइज हो रही है, पैसा मिल रहा है, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे ओल्ड कंप्यूटर 4,000, ठीक है, चाहे कितनी भी वैल्यू दे रखी हो कोई बात नहीं, जितना आपने रियलाइज किया वो लिखेंगे। वेल, ही कैन से दिस ऑल्सो, द ओल्ड कंप्यूटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट
इज टेकन बाय मिस्टर सी, वो ये भी कह सकता है कि ये असेट्स मिस्टर सी ने ले लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ओके, ब्रैकेट में दिखा देंगे ओल्ड कंप्यूटर, इट्स 4000. All right, students. So this way unrecorded assets work, and in the same way unrecorded liabilities. Suppose Mr. Shyamlal was there and we forgot to record his transaction in the balance sheet liability side, and I have to pay 1000 rupees to Mr. Shyamlal. I just forgot, okay, I didn't record. So Mr. Shyamlal approached me, he said give me my 1000 rupees. Oh my god, I could not I didn't record it earlier, I forgot it. But that's a genuine thing, he has shown the receipts, bill and everything, so you will be paying. तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं है तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर. सेकंड में हम क्या करते हैं, यहाँ अगर लाइबिलिटी होती तो पेमेंट करते हैं, अनरिकॉर्डेड थी तो यू विल मेक पेमेंट हियर ओनली, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अब पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक. ये कौन है, आपके क्रेडिटर हैं, आप ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देंगे 1000 रुपीज़, ठीक है. If any of the partner takes this responsibility to pay him, suppose Ramlal is his neighbor, रामलाल इज़ वन ऑफ द पार्टनर, और रामलाल ने कहा कि चलिए मैं उसको पे कर देता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट इफ़ ही इज़ अ पार्टनर, ठीक है. तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में आप दिखा देंगे क्रेडिटर. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वे यू प्रिपेयर योर रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, वन मोर आइटम इज देयर टू टेल यू, दैट इज when your creditors are ready to take some assets, ठीक है. मान लीजिए मैंने अपने क्रेडिटर्स को 20,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, वो अपने आप, वो इंटरनल मैटर है इनका, कितने में डिसाइड करते हैं. और मान लीजिए मेरी एक असेट्स 20,000 की है तो वो ले सकते हैं, मेरी असेट्स 22,000 की है तो भी ले सकते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. आपको थोड़ा लॉस हो रहा है कि 22,000 की असेट्स वो 20,000 में ले रहे हैं, बट हार्डली मैटर, ये इनका आपस का मैटर है, सो दे विल मैंशन इट. अगर मैंशन करते हैं तभी है ऐसा, नहीं तो हमें एक्सेस जो हमारा अमाउंट है उसकी भी एंट्री करनी पड़ती है. ऑलराइट, व्हेन दे गिव दिस वर्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, राइट, योर क्रेडिटर्स हैज एक्सेप्टेड द असेट्स. ऐसा भी हो सकता है कि योर क्रेडिटर आर ऑफ 20,000 एंड दे आर एक्सेप्टिंग द असेट्स ऑफ 18,000, आपस की सेटलमेंट है. इफ दे गिव इन द क्वेश्चन कि दे हैव सेटल्ड दैट, राइट. सो व्हेन यू गेट दिस language in the question, means your some of the creditors or liability holder, they have taken the assets. So students, we don't pass any entry of that particular amount. उस देखिए liability थी, ठीक है, creditor थे कोई, उनको हमें पेमेंट करना था इधर, ठीक है, assets थी उसको रियलाइज करना था इधर, ठीक है. अब इन्होंने यहाँ से 20,000 का कम हो जाएगा और यहाँ से 20,000 की वैल्यू की, आई मीन इक्वल, जो भी वो सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आइटम चाहे कम है या ज़्यादा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रियलाइज़ नहीं करना, तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाता है, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं आती. ऑफ कोर्स उसकी जर्नल एंट्री होती है, अगर जर्नल एंट्री वो पूछता है तो वो एंट्री आप करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है. उसकी भी एक रीज़न है, जैसे लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ के क्या बैलेंसेस होते हैं आपके, यू कैन सी हियर, दिस इज लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके, एंड हियर असेट्स हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. तो जब आप पेमेंट करते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ठीक है. So here we have completed the realization account, but don't forget to balance it. इसको हम वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे हम नॉर्मल अकाउंट्स बैलेंस करते आए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करते हैं. So what to do at the time of balancing this realization account? Do the total of both the sides, okay, and mention wherever you have more. जहाँ भी आपका ज़्यादा अमाउंट आता है उसको आप लिख देंगे. सपोज हेयर कम्स, इट इज़ नॉट द जेन्यून टोटल विच आई एम राइटिंग. सपोज हेयर इट कम्स 80,000, ऑल्दो इट इज़ टू मच, ठीक है. सपोज इट इज़ 80,000 एंड हेयर कम्स द 70,000, ठीक है, तो हम 80,000 यहाँ लिख देंगे, 10,000 जो हमारा बैलेंस होगा हम यहाँ लिख देंगे. हेयर कम्स योर प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, okay, which will be distributed between the partner in their old profit sharing ratio. Here the problems are not there, we don't have to calculate the new profit sharing ratio, no sacrificing ratio, no gaining ratio, no calculation of the goodwill, these all things are not there, okay.
सो सिंपली इफ़ योर क्रेडिट इज एक्सीडिंग, क्रेडिट रियलाइजेशन वाली है ना, आपको एसेट्स रियलाइज हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो ये इनकम वाली तरफ हो गई है। तो इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग ओवर द डेबिट साइड, जहाँ की आप पेमेंट करते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिटवीन ऑल द पार्टनर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इफ योर डेबिट इज एक्सीडिंग ओवर द क्रेडिट, दैट्स लॉस, again distributed between all the partners in the old profit sharing ratio. Okay, so this was your realization account. Have a look in the book also, students. They have prepared all the assets they have taken, and you know, goodwill also. In the previous chapters we have studied that goodwill is written off. यहाँ पे automatically सब write off हो जाएगा जो भी profit and loss है, ठीक है, क्योंकि जो भी profit and loss आता है वो partners को ही जाता है ultimately। तो गुडविल को आप बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करेंगे, ठीक है, गुडविल आप लिख देंगे जितनी भी वैल्यू अगर दे रखी है असेट्स में, ध्यान रखेंगे। इफ़ इट इज़ मैंशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट असेट साइड, इफ गुडविल इज मैंशन, तो उसको जैसे हम पहले करते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको और असेट्स की तरह ट्रीट करना है। नॉर्मली जस्ट टेक दिस गुडविल ऑल्सो दिस साइड, ओके, एंड हेयर यू टेक ऑल द लायबिलिटीज, राइट। So provisions for doubtful debts, investment fluctuation reserve, sundry creditors, BP, outstanding expenses, bank loan, bank overdraft, so and so. And again they have taken it as a cross, यहाँ पे ये payments realize हुआ है इधर, and यहाँ पे इनका payments हुआ है, ठीक है। Realization expenses they have taken, fine. And here comes the gain or profit on realization, here comes the loss on realization. All right students, now I'm taking one of the illustration of the journal entry. Now this will be clear to you. Illustration number 4 is telling X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Give journal entry under following situation at the time of dissolution of firm. First it is telling workman compensation reserve in the balance sheet was 75,000. These are regarding workman compensation fund, okay. We know that we deal in the special way. So what to do students, please take care. वर्कमैन कंपनसेशन, अब यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है, ध्यान दें आप कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन आपका लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो आपको यहाँ नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लेम नहीं है तो सीधा जैसे जर्नल रिजर्व को डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने सीखा था पहले, उसी तरह से है, तो हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपकी एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, workman compensation reserve account debit to, here in the question we have X and Y, to X capital to Y's capital, and the amount was 75,000, and that's in the 3:2 ratio, that's 45,000 and it is 30,000, right students? So this way, no involvement of the realization account. Next it is telling workman compensation reserve was 60,000 and liability for it was 35,000, ठीक है, कि आपका रिजर्व 60,000 का था और आपकी लायबिलिटी हो जाती है 35,000 की, ओके। सो इसमें क्या करना है कि जितना हमारा लायबिलिटी है वो पोर्शन तो आप रियलाइजेशन में डालेंगे, वो तो रियलाइजेशन में जाएगा। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ का आइटम है, लायबिलिटी का है, ठीक है। तो यू कैन सी है, तो आप क्या करते हैं, एंट्री क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पे अगर आप एंट्री देखते हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, और ये आइटम डेबिट है, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना, जितना आपका कंपनसेशन है, क्लेम है जितना, ठीक है। इट इज टेलिंग द लायबिलिटी फॉर इट वाज 35,000 की, ठीक है। सो यू हैव ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन। नाउ रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग 25,000 कहाँ जाता है, जस्ट यूज योर नॉलेज। इफ इट इज नॉट गिवन एज अ लायबिलिटी, सो दिस विल बी टेकन बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स उसको ले लेते हैं, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रखा है ना बैलेंस शीट में, तो ये तो इतने से डेबिट होके ख़त्म होगा ही, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। 25,000 का है, 3:2 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है, दैट कम्स 15,000 एंड 10,000। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एंट्री ऑल्सो।
Further, it is explaining workman compensation reserve was 60,000 and liability was 75,000. Okay, so this is very clear कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कई बार हमारे पास कम होता है और हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ भी किया कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी पेमेंट करना पड़ जाता है एक्स्ट्रा, तो लॉस में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली दिस हैपन्स। तो हम क्या करेंगे इस केस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरे का पूरा 60,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और उसको जो पेमेंट करना है वो यहाँ पेमेंट कर देंगे। तो दोनों ही जगह आपका रियलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो हेयर वी कैन डू द एंट्री। अगर आप यहाँ मेंशन करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट की तरफ आ गया। कितना, क्योंकि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, 60,000 है, ठीक है, हमने 60,000 मेंशन कर दिया। ऑलराइट, फिर है आपका यू हैव पेड दैट, इट्स टेलिंग लाइबिलिटी वॉज 75,000, रिजर्व कम था, लाइबिलिटी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, वी विल मेक द पेमेंट हेयर, इफ़ इट इज़ मोर हार्डली मैटर, तो टू बैंक, इफ़ आई राइट टू बैंक, सो व्हाट विल बी द एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, realization account debit to bank 75,000. Right students, here you can watch realization account debit to bank. This way we make the payment of the workman compensation reserve. Are you getting students? अगर आपका कोई क्लेम नहीं है तो आपको यहाँ नहीं लाना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कीप इन योर माइंड। इफ़ यू हैव अ क्लेम, ठीक है, आपका क्लेम कम है, वर्कमैन कंपनसेशन ज़्यादा बनाया हुआ है, तो सिर्फ कितना दिखाएंगे, जितना क्लेम है उतना आप दिखाएंगे और इधर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, बाकी का बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव लेस रिजर्व, कोई बात नहीं, आप यहाँ दिखा देंगे, एंड मोर लाइबिलिटी, देन मेक द पेमेंट हियर टू बैंक, यहाँ कर देंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एंट्री इट इज टेलिंग workman compensation reserve was 60,000 and liability was also 60,000. There is no problem. Okay, so here उतनी ही liability है आपकी, तो पहले आप इसको realization में transfer कर देंगे, फिर उसका payment कर देंगे, ठीक है। So what to do, workman compensation reserve इधर आ जाएगा, entry हो जाएगी workman compensation reserve account debit to realization. Okay, एंड देन यू मेक द पेमेंट। पेमेंट कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो ये 60,000 वाला आप इस तरह से पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज नील एंड लाइबिलिटी वॉज 15,000. ओके, सो नो प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट थिंग, बट आपने कोई रिजर्व ही नहीं बनाया हुआ, आपने कोई रिजर्व नहीं बनाया है तो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आपको देना पड़ गया। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कंपनसेट करना पड़ा, तो कोई भी लाइबिलिटी है ये आपकी, ठीक है, तो उसकी पेमेंट कहाँ हो जाती है, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक करके, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। Okay, so this way we have made the payment. I hope it is clear how to pass the journal entries now. Okay, so the brief is workman compensation, कोई क्लेम नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इफ़ यू हैव मोर रिजर्व तो यहाँ पे उतना ही आएगा जितनी पेमेंट करनी है, ठीक है, बाद में उसको यहाँ पेमेंट करके दिखा देंगे, और बचा हुआ आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, and if you have of the similar amount then show it here, make the payment. Okay, if you have less reserve, more liability, show the workman compensation reserve and make the payment, either it is more, hardly matter. And if you don't have reserve at all, don't worry, don't mention, make the payment whatever you have to pay. Okay, so we have completed your illustration number 4, and let's take illustration number 5 also. This is also easy, interesting, and within 5 minutes we will complete it. Okay, so here it is telling pass journal entry for following transactions on dissolution of a firm of partners A and B after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to the realization account. Okay, so they are just giving the outline of the question.
जर्नल एंट्रीज हमें देनी है डिसोल्यूशन के टाइम। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। आफ्टर वेरियस असेट्स, कैश के अलावा जो भी थी वो एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, दीज यू हैव ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हमें एंट्रीज करनी है। क्या माना है हमने स्टूडेंट्स, क्या कहा है कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट जैसे प्रिपेयर करते हैं तो यू हैव ट्रांसफर द असेट्स एंड ट्रांसफर द लाइबिलिटीज। नाउ प्रोसीड विद दैट। सिर्फ पेमेंट वाला ओके कि असेट्स को रियलाइज करना है तो क्या एंट्रीज आएंगी, लाइबिलिटीज को पे करना है तो क्या एंट्रीज आएंगी। So first entry is telling A took 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. ठीक है, तो मैं आपको इसका ब्रीफ बना के दिखाती हूँ, so you will this will be easy for you. So here comes the assets. So book value of the stock given in the balance sheet before dissolution. Suppose यहाँ पे आपकी 4 लाख की assets दिखाई हुई थी. Okay. So regarding this they are talking. Realization account. ए टुक, अब यहाँ पे इस असेट्स को सेल किया है, ऐसा नहीं है बाहर वालों को सेल नहीं किया, अगर करते तो बैंक आ जाता, ठीक है, बाय बैंक आ जाता, बट दे आर टेलिंग ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख का 50% कितना होगा, 2 लाख, हाफ हो गया ना, जस्ट हाफ हो गया। ओके, तो ए ने ले लिया है 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब 2 लाख का 20% कितना आने वाला है, इट्स 40,000, राइट स्टूडेंट्स, 20% कितना हो जाएगा, 40,000, तो 2 लाख में से 40,000 जाएगा, दिस कम्स 1,60,000, ऑल राइट। तो ये 1,60,000 इज टेकन बाय ए, तो आप क्या करेंगे यहाँ, बाय एज कैपिटल, ओके, अमाउंट आ जाएगा 1,60,000। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है आपकी, रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा क्योंकि ये क्रेडिट की तरफ है, ठीक है, तो डेबिट क्या हुआ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो यू कैन सी हियर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके, दिस वे वी हैव डन। नाउ फर्दर इट इज टेलिंग इन दिस ओनली रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आई एम सॉरी रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 4 लाख का 50% ये ले लिया, तो बाकी भी कितना बचा 50%, यानी अगेन इट इज 2 लाख। अब 2 लाख का 30% कितना हो जाता है, 3 to the 60,000 is the profit, okay, so the value is 2,60,000, ठीक है। तो इसका क्या किया, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, तो ये सेल किया है मार्केट में, तो आपको पैसा मिला है, ओके, तो ये वाला असेट्स का पार्ट कैसे रियलाइज हो जाएगा, बैंक, इतना 2,60,000, राइट स्टूडेंट्स। So here the journal entry will be bank account debit to realization account 2,60,000, you can see here, okay, bank to realization. Next entry, debtors rupees 2,64,000 provision for doubtful debts 24,000 already you have adjusted, 48,000 of the book debts proved bad, 48,000 आपके book debts जो हैं वो declared as bad debts, okay। तो डेटर्स आपने कहाँ लिए होंगे, यहाँ पे लिए होंगे डेटर्स 2,64,000 के। अब जब पेमेंट मिलेगी तो यहाँ पे मिलेगी बाय बैंक, ओके। 2,64,000 वॉज द अमाउंट एंड 48,000 आपका बेड डेट्स हो जाता है, ओके, सो योर अमाउंट कम्स 2,16,000, ठीक है, 2,16,000 आपको रियलाइज होता है डेटर से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके। यहाँ पे आप ब्रैकेट में दिखाएंगे डेटर्स हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट में असेट्स हो गया, ओके। बाकी ये जो मेन है आपका ये बैंक ही होता है, इधर भी और इधर भी, ओके। सो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,16,000, ऑल राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग sold for 8 lakh through a broker who charged 2% commission, okay। बिल्डिंग इट्स बुक वैल्यू वॉज 5 लाख, जो कि यहाँ पे थी आपकी बिल्डिंग 5 लाख की, सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज, ठीक है, थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन, ऑल्दो इट इज़ अ प्रॉफिट, तो आपने यहाँ लिखा बाय बैंक, बिल्डिंग आपकी 8 लाख की है, रियलाइज हुई है आपको, एंड 2% आपको कमीशन देना पड़ा। तो कमीशन के दो मेथड हैं स्टूडेंट्स, एक तो आप यहाँ पे दिखा के कमीशन इधर दिखा देंगे टू बैंक करके, या फिर आप इसी में से चार्ज कर लेते हैं, राइट। सो इट्स 2% इज 16,000, ठीक है, 16,000 आप इसमें से माइनस करके दिखाएंगे, एंड हियर वैल्यू कम्स 7 लाख
84,000. ठीक है, so your entry is bank account debit to realization. Again you can see here 7,84,000. fine. Now next we have machinery. Book value is 6 lakh, was given to a creditor at a discount of 20% in settlement, right? So just pay attention. I have told you while preparing the realization account, machinery is one of the assets. Okay, machinery comes here and its value was 6 lakh, was given to a creditor. creditor को आपने यहाँ दिखाया होगा जो भी amount होगा, hardly matter. ठीक है, at a discount. अब जो भी उसकी वैल्यू थी तो आपने मशीन को 20% डिस्काउंट पे क्रेडिटर को दे दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कि भाई कम ज़्यादा जो भी है मैंने डिस्काउंट ऑफर किया है, आप ले जाइए. ठीक है, तो क्रेडिटर्स डेफिनेटली कम रहे होंगे. ठीक है, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दे दिया. सो देयर विल नॉट बी एनी एंट्री. सी, क्रेडिटर को पे करते हैं तो इधर आएगा टू बैंक, रियलाइज होता है मशीन से तो बाय बैंक आएगा. तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को मशीन उठा के दे दी, ना तो हमें यहाँ पे करना पड़ा, ना हमें मशीन से यहाँ रियलाइज हुआ, दोनों तरफ से बैंक नहीं रहा, तो नो एंट्री विल बी पास्ड इन दिस केस. हैव यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड इट? कि क्रेडिटर्स को यहाँ पेमेंट नहीं करना पड़ा, मशीन की यहाँ रियलाइजेशन नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये मशीन उठा के मैंने क्रेडिटर्स को दे दी, तो नो एंट्री विल बी पास्ड. ऑफ कोर्स एंट्री होगी आपकी. ठीक है, क्रेडिटर्स यहाँ आपने क्या किया हुआ है, क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे आपने डेबिट किया हुआ है, तो इनको आप जब मशीन देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन उसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं दिखाते हैं क्योंकि रियलाइजेशन वर्ड नहीं आता, तो आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगी. ओके, सो नो एंट्री. नेक्स्ट एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट्स. बुक वैल्यू वॉज गिवन 40,000 हेयर, इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट 150%. ये तो आपका 100% वैल्यू है, ये कह रहा है कि 150% रियलाइज हुआ है, मीन्स दिस is 100% plus 50% of this is 20,000. ठीक है, तो इसका 150% कितना हो जाएगा, 60,000 that they have realized. तो इन्वेस्टमेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज दिस इज इन्वेस्टमेंट. असेट साइड है हमारी, पेमेंट बाद में. ठीक है, तो असेट्स आपकी इधर रियलाइज होगी, बाय बैंक करके 60,000 आपने यहाँ पे रियलाइज किया है. ऑलराइट, सो योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. Okay, so this way we have completed this. I hope it is clear how to prepare the realization account. So I will be giving you the related question, so complete it timely and post it on the WhatsApp. It's for everyone. Okay, thank you.